Good morning, students. Here I am, your Sanjeevani madam. We will be interacting for few topics on OCM. So, good morning. Let's start, student. We will starting with the chapter 5th, Emerging Modes of Business. You all know doing the business is serving the people, either by providing them the manufactured goods or certain services. But the new mantra of the day is growth, globalization cycle time, speed, and competitiveness. E-business is the abbreviation of electronic business. Previously, the term was called e-commerce. E-business is the combination of both the terms, e-commerce and emailing. E is what? Electronic. It refers to web, internet, intranets, extranets, networking types है और some combination thereof to conduct business. इन सबका either combination या डायरेक्टली इंटरनेट पे वेब पे आपने जो किया हुआ बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिकली जब आप लोगों तक कस्टमर तक कंज्यूमर तक पहुंचते हो उसे ई बिजनेस कहा जाता है. ई बिजनेस इज नॉट अ टेक्निकल चेंज. अभी ये कोई बहुत बड़ी अलग सी चेंज नहीं है. इट इज जस्ट अ फंडामेंटल चेंज इन द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, एडिंग द बिजनेस, सपोर्टिंग एंड which is enabled by the technology. Supporting and aided, that is जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते थे, एनी सर्विसेज लाइक लीगल सर्विसेज. नाउ डेज ये पैंडेमिक की वजह से क्या हो रहा है, डॉक्टर सर्विसेज ऑल्सो ऑनलाइन. सब जगह पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज मिल रहा है. अभी तक आप डॉक्टर तो कम से कम विजिट करते थे, वो चेक करता था आपको बुखार है कि नहीं, आपका गला देखता था, थ्रोट इन्फेक्शन है कि नहीं. लेकिन दैट टू ऑल्सो नाउ डेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ऑनलाइन आप चेकअप करा सकते हो. ये क्या हो गई, ये सर्विस भी अब ई बिजनेस हो गई. ठीक है. सो रीचिंग टू द एंड यूजर थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू वेब, थ्रू इंटरनेट इज समथिंग अ ई बिजनेस. सेम, द इंटरनेट एंड द वेब सपोर्ट टुगेदर प्रोवाइड opportunities in selling, customer relation, product service design, user support, geographic expansion, logistic and supply chain integration. This is nothing but the business on internet. Technology is moving fast to make this possible tomorrow, which seems impossible today. आज जो भी लग रहा है कि हो नहीं सकता या कल लगता था, आज हम जैसे डॉक्टर तो पॉसिबल ही नहीं, डॉक्टर से मिले बगैर कैसे होगा. आज देखो कोर्ट, वकील, लीगल सर्विसेज, हर चीज अब आपको ऑनलाइन प्रोवाइडेड है. ठीक है. इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फ्लिपकार्ट और इसके थ्रू आपको, अमेजोन के थ्रू आप क्या करते हो, ऑनलाइन अब प्रोडक्ट आ जाता है. पहले ये पॉसिबल था क्या, पहले था दुकान में जाना, फिर हुए मॉल. एट अ टाइम आपको कई सारे डिस्प्लेज एक साथ मिलने लगे, शेल्फ डिस्प्लेज, मॉल कंसेप्ट आया. अब क्या है, डायरेक्टली ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हो. अब वहां पर भी मॉल में भी जाने की जरूरत नहीं, पूरा शेल्फ आपके सामने ऑन योर वन क्लिक अवेलेबल रहता है. आप अपना जो भी वार्डरोब चूज करना चाहते हो, होम अप्लायंसेस चूज करना चाहते हो, वो सारी चीजें आप सामने ही डिस्प्ले आपके आएगा. यू हैव टू चूज, यू हैव टू पे एंड यू गेट द डिलीवरी. दिस इज समथिंग नाउअडेज electronic businesses. For book's sake, the meaning is the term e-business is electronic business is derived from the terms email and e-commerce. E-business or electronic business is the administration of conducting businesses via the internet. This would include the buying and selling of goods or services along with providing technical or customer support through the internet.
अब ये कंसेप्ट क्या है, ये IBM की तरफ से लेट 90s में ये कंसेप्ट इमर्ज हुआ। इसका पर्पस था बायर्स को एक प्लेटफॉर्म इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड करके देना, बायर एंड सेलर दोनों के लिए भी, गुड्स के लिए एक प्लेटफॉर्म सब ये इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल करा के देना, ये कंसेप्ट था। IBM की तरफ से ये टर्म आई थी, ई बिजनेस। The concept of e-business emerged when IBM coined the term in late 90s. The purpose was to provide buyers a platform on the internet to buy and sell goods. Second point is, some people use the term e-business and e-commerce interchangeably, but they are not synonymous. E-commerce refers to buying and selling online, while e-business encompasses all business conducted online. E-commerce is branch of e-business. E-business जब बोलते हो तो buying and selling of goods and services. E-commerce थोड़ा वाइडन कंसेप्ट है, ठीक है। जो भी बिजनेस आपका ट्रेडिंग हो, सेलिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ अगर अलग से ये करना हो, तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनटू दी e-commerce. Scope क्या है? The scope of e-business is not restricted to only online shopping. It also includes online stock transactions and the use of software. E-business जो है सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नहीं है, तो स्टॉक कर सकते हो आप, मिडल जो देते हैं ना बीच में ब्रोकर्स, कई बार आपने देखा होगा वर्क फ्रॉम होम है कि आप हमारा सेल कर सकते हो, तो लाइन स्टॉक हो जाता है। वो ट्रांजैक्शंस एक दूसरे के साथ जो मिडल एजेंसीज जो ट्रांजैक्टिंग में काम करती है, एंड द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, इसको सपोर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सारा आपको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के सपोर्टिंग, ये सब ई बिजनेस में इंक्लूड होता है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस functions such as production, finance, marketing, and personal administration, as well as managerial activities like planning, organizing, controlling can be carried out over computer networks. कोई भी अब उसको limitations नहीं रहा है, मार्केटिंग के हो, प्रोडक्शन के हो फंक्शन, फाइनेंस के हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजरियल या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, या प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये जो मेन मैनेजरियल फंक्शंस थी, एक्टिविटीज थी, ये सब कुछ अब कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है आपके लिए। नॉर्मल अभी आप देखो टीचिंग, अभी तक गुरु शिष्य परंपरा थी, सामने शिष्य बैठते थे, गुरु बोलते थे, हमारे इसमें भी अब हम टीचर्स बोलते थे स्टूडेंट सामने, ये भी अब ऑनलाइन हो गया। अभी बहुत सारे इनविजिबल, आप हमें सुन रहे हो, आप हमसे ज्ञान ले रहे हो, लेकिन आप हमारे सामने नहीं हो, ठीक है। या फिर अगर क्वेरीज भी पूछना चाहते हो तो हम जूम मीटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो योर क्वेरीज आर ऑल्सो बीन सेटिस्फाइड, वी आर डिलीवरिंग द नॉलेज। ये सब कुछ क्या हो रहा है, अब ऑनलाइन हो रहा है, थ्रू इंटरनेट हो रहा है। The other way of looking at the scope of e-business is to examine in terms of people or parties involved in electronic transaction. E-business जो wider concept है, उसके बात कर रहे हैं हम लोग, कि दूसरा उसका देखने का ये नजरिया है कि इसके अंदर जितने भी इन्वॉल्व हैं लोग जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के लिए लग रहे हैं, जैसे मैंने बोला, ये मिडल एजेंसीज या मिडल एजेंट होम थ्रू वी गेट द, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, या इंडिविजुअल्स हुए, इनके थ्रू हम लोग जो who facilitate us to interact or to directly join or to get the facility of, ठीक है, जो भी फैसिलिटी, जो भी गुड्स आपको जरूरत है, तो इट्स बिटवीन द जो चेन है, मिडल चेन बिटवीन द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। Various businesses and payment apps popularly used in e-business transactions are, e-business transaction में कौन कौन से ऐप पेमेंट के लिए यूज होते हैं? गूगल पे, फोन पे, स्विगी, ओला, ये मिडल एजेंसीज जो मैंने बताया। अब इसमें
बिजनेस के जो टाइप्स है वो ई बिजनेस में भी काम आते हैं। ठीक है। प्रोस्पेक्टिव फर्म पर्सपेक्टिव से तरफ से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एंड नेटवर्क्स कैन बी विजुअलाइज्ड एज एक्सटेंडिंग इनटू 6 डायरेक्शंस। अलग अलग तरीके से 6 प्रकार में बिजनेस के फॉर्म्स जो है उनको डिवाइड किया गया है। एक होता है बिजनेस टू बिजनेस B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर, क्या है ये डिटेल्स देखते हैं हम लोग। कंज्यूमर टू बिजनेस C2B, C2C, B2A that is business to administration and consumer to administration C2A। business to business firm क्या है? In this form the buyer and seller are both business entities and do not involve individual consumer। ये डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ काम नहीं करते, दोनों भी बिजनेस हब्स होते हैं who interacts in between। Here both the parties involved in e-commerce transactions are business firms and hence the name B2B, that is business to business। Transactions between business firms come under this category। Business firms interact with each other for a variety of services। These include supplying ancillary parts, components to manufacturers, providing value-added services like catering and also providing manpower। बिजनेस टू बिजनेस क्या है? जैसे यहाँ पे बजाज कंपनी है, बजाज कंपनी में स्कूटर बनती है, स्कूटर के अलग अलग पार्ट्स छोटे छोटे वेंडर्स के पास बनते हैं, वो पार्ट्स बजाज में कंपनी में आते हैं, वहाँ पे असेंबली होती है और स्कूटर वहाँ से निकलता है। अब ये वेंडर्स जो अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं कंपनी के, वो भी बिजनेस करते हैं, तो इन दोनों के अंदर जो ट्रांजैक्शन होगा बजाज टू देयर वेंडर्स, वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, B2B ट्रांजैक्शन उसे कहा जाता है। दूसरा है B2C, कस्टमर आइडेंटिफाइज अ नीड एंड सर्चेस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड। कस्टमर सिलेक्ट अ वेंडर एंड नेगोशिएट द प्राइस। कस्टमर्स रिसीव the product or services, makes payments, gets service and warranty claims। As the name implies, B2C transactions have business firm at one end and its customer at the other end। B2C क्या है? अब कस्टमर ने नीड अराइज हुई टू व्हीलर खरीदने की, उसने सर्च किया प्रोडक्ट एंड सर्विस कहाँ पे सेटिस्फाई कर सकता है उसका नीड। अलग अलग कंपनीज है, आप जानते हो, वहाँ पे उसने होंडा में, बजाज में, सब में चेक कर दिया कहाँ कहाँ पे उसके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली नीड सेटिस्फाई हो सकती है, ऐसे गुड्स अवेलेबल है। फिर कस्टमर रिसीव द प्रोडक्ट वंस ही क्या बोलते हैं उसे, प्लेस द ऑर्डर एंड कंप्लीट हिज फॉर्मेलिटीज, ही रिसीव द प्रोडक्ट, पेमेंट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसे सर्विस मिलती है। वारंटी के लिए क्लेम हो जाता है, वारंटी कार्ड भी आपका आ जाता है। ठीक है, अब एक एंड में कौन है? जो सेल कर रही थी एजेंसी, टू व्हीलर से सेल कर रही थी एजेंसी, वो है बिजनेस फर्म, और दूसरी तरफ एंड यूजर है कंज्यूमर, जो टू व्हीलर राइड करने वाला है। तो ये कौन सा हो गया बिजनेस? दिस इज बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया। द ट्रांजेक्शंस अंडर B2C आर बिटवीन बिजनेस फर्म एंड कंज्यूमर। फर्म्स यूज देयर साइट्स फॉर रेंज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। उन्होंने अलग अलग साइट्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए हैं जो कंज्यूमर ने सर्च करके अवेलेबल के लिए अपने नीड के अकॉर्डिंगली सर्च किए हुए हैं। दिस इंक्लूड्स प्रमोशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, रिव्यूज अबाउट द प्रोडक्ट सर्विसेज एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एट द डोर स्टेप। फर्म को क्या क्या लगता है? अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना पड़ता है। ठीक है, होंडा की कैसी अच्छी है, बजाज की कैसी अच्छी है, हर एक अपना अपना डिस्प्ले रखते हैं। देन प्रोडक्ट की उसके पूरी इन्फॉर्मेशन चार्ट रहेगा, कितने सीसी इंजन है, क्या स्पीड है, क्या माइलेज दे रही है, अगर आप टू व्हीलर का हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पूरी डिस्प्लेड रहेगी। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की आफ्टर सेल सर्विस ये क्या देता है, कितनी ईयर्स वारंटी दे रहा है, क्या क्या कितनी 3 फ्री सर्विसिंग, 5 फ्री सर्विसिंग्स हैं, इस तरह के अलग अलग जो उसने अपनी तरफ से जो प्रोवाइड की हुई है चीजें हैं वो
देता है, लेकिन हम सिलेक्ट करते वक्त कंज्यूमर क्या पढ़ता है, हमेशा फिर स्क्रॉल डाउन करके रिव्यूज पढ़ता है। ठीक है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कैची उसका फोटोग्राफ, कलरफुल डिजाइन, इस सब के पीछे नहीं जाता है। पीछे स्क्रॉल डाउन करके क्या करता है, रिव्यूज जिसने यूज किया है वो अपनी उसके ऊपर कमेंट्स डाला रहता है, या दिस प्रोडक्ट इज रियली वेरी नाइस, वर्थ टेकिंग, या फिर वर्स कमेंट्स डालते हैं, नो इट वाज होपलेस, वी डिडंट लाइक इट, वी डिडंट फाइंड द थिंग, या फिर इस एजेंसी से प्रोडक्ट अच्छा है, एक्टिवा लेनी अच्छी है, लेकिन इस एजेंसी से मत लो, उस एजेंसी का रिव्यू रहता है, उस बिजनेस का रिव्यू रहता है, उस प्रोडक्ट का रिव्यू रहता है। तो ये सारे रिव्यूज भी सब लोग जज करते हैं, अकॉर्डिंगली अपना बायस डिसीजन फॉर्म करते हैं। रिव्यूज अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एक्टर, और ये इस सबके बाद जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस बिजनेस फर्म की ये जिम्मेदारी होती है कि डोर स्टेप तक डिलीवरी दे दे। यहाँ पे उनका पूरा बिजनेस खत्म होता है। ठीक है, सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। ये बिजनेस टू कंज्यूमर। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज केप्ट लो थ्रू दिस मेथड and the speed of transaction is also faster. Example of websites www.flipkart.com etc. यहाँ पे कंपैरेटिवली लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्ट के कॉस्ट लो रखने पड़ते हैं, और लो रखना उनको पॉसिबल भी इसलिए होता है बिकॉज कहीं पर शेल्फ डिस्प्ले करने के लिए उस जगह का रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, मैन पावर इन्वॉल्व होता है, इस सब कॉस्ट कटिंग हो जाती है व्हेन इट इज डिस्प्लेड इलेक्ट्रॉनिकली। आप वेबसाइट पर डिस्प्ले करोगे तो उसमें वेबसाइट का जो ट्रांजेक्शन खर्चा है, ये खर्चों के कंपेयर में ये इलेक्ट्रॉनिक खर्चा कम होता है, इसलिए कॉस्ट लो रखना भी उन्हें परवड़ता है, और स्पेशली इसलिए रखते टू अट्रैक्ट। अब आप परचेसिंग करते हो, पैंटालून्स में जाके आप कपड़े खरीदते हो, या शूज में लिबर्टी में जाके आप शूज खरीदते हो। ये ब्रांड्स में जाने की जगह एक्चुअल फिजिकल वहां पे डिस्प्ले है, वहां पे देखने की जगह आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के इनके साइट्स के थ्रू जब प्रोडक्ट देखते हो तो कंपैरेटिवली आपको यहाँ पे चीपर रेट में मिलता है। ठीक है, चीप वहां पर क्लियरली कहा रहता है कि ये ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है, इनके रेट्स ये है, और जब आप शॉप में जाते हो वहां पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल होते या नहीं होते, और जो नहीं होते हैं वेबसाइट पे अवेलेबल, वो प्रोडक्ट्स एक्चुअल डिस्प्ले, एक्चुअल शोरूम में आप पैंटालून के जाएंगे, लिबर्टी में जाएंगे तो वहां पे अवेलेबल होंगे, और नेचुरली वो हाई कॉस्ट मिलेंगे आपको। आप पूछोगे ऑनलाइन में इस तरह ये डिजाइन नहीं है लेकिन आपकी कॉस्टिंग ये क्यों है, तो वो वहां पे उन्हें चीप रेट में परवड़ता है, बिकॉज यहाँ की कॉस्टिंग प्लस प्रॉफिट गिव्स यू द सेलिंग कॉस्ट। वहां कंपैरेटिवली ये कॉस्ट कटिंग होने की वजह से सेलिंग कॉस्ट कैन बी मिनिमम। तो फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल अपनी बुक में दिया है, बट मैंने लिबर्टी और पैंटालून का भी आपको एग्जाम्पल दे दिया, वो याद रखना। बिजनेस टू कंज्यूमर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब है कंज्यूमर टू बिजनेस। इन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन द कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस। क्या होता है, कंज्यूमर बिजनेस की तरफ से, बिजनेस हब की तरफ से कुछ सर्विसेज मांगता है। कंज्यूमर टू बिजनेस इज ग्रोइंग एरिया वेयर द कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस। इट enables buyers to quote their own price for specific goods or services. A consumer posts his request with a set of budget online, and companies review the customer's requirement and bids out the project. For example, pest control services, taxi services, doorstep food delivery services, etc. Swiggy या Zomato, doorstep food delivery यानी। यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर अपनी ऑर्डर प्लेस करता है बिजनेस की, और ऑर्डर प्लेस करते वक्त अपने टर्म्स एंड कंडीशन डालता है कि मेरा ये बजट है, इस बजट में मुझे ये इस तरह के प्रोडक्ट्स आप दिखा दो। ठीक है, तो यहाँ पर तो दिया है टैक्सी सर्विसेज के लिए कंज्यूमर अप्लाई करता है। ओला, उबेर क्या करते हैं, दूसरा जो वहाँ बिजनेस प्रोवाइडर है उससे कांटेक्ट करते हैं और आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं।
जोमेटो स्विगी क्या करता है, यू पोस्ट कि मुझे अभी ये प्रकार का फूड चाहिए, ये आइटम्स चाहिए, व्हाट दे डू, वो वहाँ पे उन जो बिजनेस ये प्रोवाइड कर रहा है उसके पास जाते हैं, वहाँ से पिकअप करते हैं डिलीवरी एंड आपको सर्विस डोर स्टेप पे प्रोवाइड करते हैं। तो कंज्यूमर को बिजनेस की तरफ से जो अपना नीड सेटिस्फाई हो गया, उस टाइप के बिजनेस को कंज्यूमर टू बिजनेस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर. It facilitates the online transaction of goods or services between two people. Consumer to consumer involves the electronically facilitated transactions between consumers through some third party. A common consumer posts an item for sale and other consumers bid it for purchase it. The sites are only intermediary just to match the consumer. The internet allows a lot of space for consumer groups to be formed. These forums are very interactive. Redressal of companies is also possible through such groups. eBay या फिर Cars24, ठीक है, या फिर OLX, आप अपने ओल्ड फर्नीचर पोस्ट करते हो एंड द फ्रंट पर्सन अदर कंज्यूमर परचेसेस इट. ठीक है. तो इस तरह के कई सारे साइट्स हैं जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर फैसिलिटी देते हैं दो लोगों को आपस में बिजनेस करने के लिए. उसमें बहुत सारी स्पेस इसलिए दी जाती है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स अपना अपना ग्रुप फॉर्म करके भी उसमें सेलिंग एंड बाइंग कर सकते हैं. ये होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस टाइप. Business to administration. This part of e-commerce encompasses all transactions conducted online between business and public administration. Example क्या है इसके? Registration of companies, payment of taxes, getting permits, etc. अब ये सब ऑनलाइन हो गया है. आपको इनकम टैक्स सीए के पास जाओ भरो ऐसा नहीं करना पड़ता है. ऑनलाइन आप टैक्स पे कर सकते हो. ठीक है. कंपनी रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन हो गया. पहले शॉप एक्ट बनाने के लिए जाना पड़ता था गवर्नमेंट बॉडीज के पास. उसके बाद आपको कुछ दिन रुकना, पेपर कई सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने. अब ये सब आप स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो अपने बिजनेस के बारे में और आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपको अभी ऑनलाइन आ जाता है. बहुत से सर्विसेज. पहले बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए भी हॉस्पिटल में जाओ, फिर उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे रजिस्ट्रेशन करो. नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन अवेलेबल. आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है सपोर्टिंग स्कैन करके अपलोड करने हैं, आप मिल सकते हैं. कई सारे इसी तरह परमिट जो गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज की तरफ से होते हैं वो भी अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो. तो ये हो गया बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का बिजनेस. कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल इकॉन पासेस all electronic transactions conducted between individual and public administration. Passport, sorry students, getting passport, आधार कार्ड, लाइसेंस, ये सब अब ऑनलाइन अवेलेबल है. ठीक है. तो कंज्यूमर डायरेक्टली अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, उनके थ्रू जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें ऑनलाइन ले सकते हैं. इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है. अभी पासपोर्ट के लिए भी ऑनलाइन लोग अप्लाई करते हैं, आधार कार्ड के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं एंड लाइसेंसेस भी किसी अलग अलग प्रकार के जो लाइसेंस आपको चाहिए हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर और भी लाइसेंसेस जिस तरह आगे लगते हैं वो सारे आपको डायरेक्टली अब ऑनलाइन अवेलेबल है. ये है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. इसके पहले ऑफलाइन भी अवेलेबल थे तो भी ये टाइप्स हैं. ऑफलाइन यानी ट्रेडिशनल जो बिजनेस सिस्टम थी उसमें ये 6 प्रकार हैं जो एज इट इज अभी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ भी अवेलेबल है. हम बेसिक टाइप्स देख रहे हैं बिजनेस के. ठीक है. कौन कौन से थे वो? बिजनेस टू बिजनेस, B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. ये 6 बेसिक
टाइप्स हमने देखे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी का पोर्शन कल देखेंगे हम लोग। गुड डे ऑल।